Good morning and Jai Hind, my dear students. Children, today we are going to start the new chapter as I have told yesterday that transport in plants. And from this chapter we are going to begin the plant physiology. आज से हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। अभी तक हम लोगों ने 3 यूनिट पढ़ लिया है। एक हल्की सी समरी आप समझिएगा। First unit, that is biological classification, in which we have discussed 4 chapters. The living world, 5 kingdom classification, that is biological classification, RH Whittaker classification, then plant kingdom and animal kingdom. This one is the unit number 1, biological classification. Then in unit number 2, we have seen the structural organization of plant and animal. We have seen 3 chapters there. Chapter number 5, morphology of flowering plants. Chapter number 6, anatomy of flowering plants. And chapter number 7, that is the structural organization of animal. And in that particular chapter, we have seen the animal tissue, various kind of animal tissue, their location, their structure, their function. Okay, and we have also seen the morphology and anatomy of cockroach. Okay, that is Periplaneta americana. Now, children, in third unit, we have seen third unit is cytology. In that particular unit, we have seen 3 chapters: cell structure and function, in which we have discussed about all the cellular organelles, their structure, their function. Then, in cell division, we have seen the mitosis and meiosis, the equational and reductional cell division. And in the last chapter, that is biomolecule, we have seen various kind of macrobiomolecules like protein, carbohydrate, nucleic acid, enzymes, fat, that is lipid. Now we are going to start the fourth unit, that is plant physiology. In plant physiology, we have to discuss chapter transport in plant, then mineral nutrition, then photosynthesis in plant, then respiration in plant, and then plant growth and development. So children, 5 chapters there are in this particular unit, plant physiology. And you know that Stephen Hales, known as father of plant physiology, और जबकि जगदीश चंद्र बोस या बसु, जगदीश चंद्र बोस या जगदीश चंद्र बसु को बेसिकली कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात हम करेंगे। चैप्टर नंबर 11 वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, and in this way we are going to begin the plant physiology. So children, in this particular chapter, transport in plant, we shall discuss about various kind of transport takes place in the plant, which is associated with plant life, plant physiology. So first of all, see here, plants have a system to transport fluids and nutrients from one part of the plant to the another part of the plant. प्लांट के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है बच्चों, आप जानते हैं कंडक्शन का ऐसा सिस्टम होता है कि वह एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फ्लूइड्स को और न्यूट्रिएंट्स को ले जा रहा होता है। समझ सकते हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं रूट्स के थ्रू प्लांट्स मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है जो लीफ तक पहुंच रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Meanwhile, the time when leaves are preparing the food material glucose, then glucose is again transported through phloem tissue to all the part of plant. Basically, a plant is a tube with its base embedded in the ground, where the base of the tube is the root system and the leaves are at the top of the tube. और ट्यूब के ऊपर लीव्स है और जबकि बेस आप जानते हैं ये रूट सिस्टम है थ्रू विच प्लांट्स एब्जॉर्ब द कैपिलरी वाटर। इसीलिए रूट्स के थ्रू जो प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है बच्चों, दैट इज कैपिलरी वाटर। आगे आप देखेंगे रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं, एक्टिंग एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। रूट हेयर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेंगे विच इज नेसेसरी फॉर ऑस्मोसिस। आगे आप ऑस्मोसिस भी देखेंगे 10th क्लास में, इससे पहले आपने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं बच्चों। यहाँ पर हर तरीके का ट्रांसपोर्ट आप पढ़ने जा रहे हैं प्लांट के अंदर। सो बी अटेंटिव एंड be 100 make your concentration 100% to attend all the things properly. Okay, first of all see the content of this chapter. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? देखिए, the ins and outs of plants. प्लांट्स में कितने तरीके से ins और outs ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। एक देखिए ट्रांसपोर्ट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम के बारे में,
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, किस तरीके से डिफ्यूजन होते हैं गैसेस के आप जानते हैं। डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देखेंगे यहाँ पे हम। इसके बाद स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेशन, दैट इज ट्रांसपिरेशन। देन वी शैल डिस्कस अबाउट द मिनरल अपटेक, and then again we shall discuss the summary and plant water relation related to transport in plant. So my dear kids, first of all, the first heading of NCERT, that is diffusion. So start the diffusion. Diffusion से हम start करेंगे। Diffusion, the movement of particles in a solid from an area of high concentration to an area of low concentration। ध्यान से समझिएगा, यानी movement of substances from high concentration, region of high concentration to the region of lower concentration without any expenditure of energy। ध्यान दीजिएगा, डिफ्यूजन में कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है बच्चों। इट इज बेसिकली द मूवमेंट थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है, दैट इज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसको बच्चों डिफ्यूजन बोलते हैं, जो कि एक स्लो प्रोसेस में हो रहा होता है और अपने आप हो रहा होता है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट डिफ्यूजन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ स्लोअर प्रोसेस। प्लीज आप इसको नोट भी करेंगे, जब अभी क्लास के बाद आप नोट बनाने लगेंगे बच्चों, तो आप इन चीजों को नोट करेंगे कि डिफ्यूजन, बेसिकली डिफ्यूजन इज a kind of passive transport in which the substances move from higher region of concentration to lower region of concentration without any expenditure of energy। Okay, it doesn't mean that it utilize any facility। वो तो एक अलग की बात हो गई। अभी डिफ्यूजन की जब टाइप देखेंगे बच्चों, तो डिफ्यूजन दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल और फैसिलिटेटेड। जहां पर कोई फैसिलिटी भी यूटिलाइज नहीं कर रहा होगा, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। But if it is utilizing some facility, like if the protein soluble substances there are, they will be just soluble inside the protein molecule present inside the cell membrane and then move across the membrane. Similarly, the lipid soluble substances, the polysaccharide mixable substances, just utilize this facility of cell membrane, then such kind of diffusion is said to be as फैसिलिटेटेड। जब कुछ फैसिलिटी यूटिलाइज कर रहा होगा, और अगर नहीं तो सिंपल डिफ्यूजन। तो आगे देखिए बच्चों, आप डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर किड्स दैट डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस व्हिच मींस दैट नो एनर्जी इज नीडेड। ध्यान दीजिएगा, कोई एनर्जी का यहाँ पर रिक्वायरमेंट या एक्सपेंडिचर नहीं होता है। Molecules diffuse until they are evenly spaced apart and equilibrium is reached। और आप जानते हैं तब तक इनका डिफ्यूजन होता रहता है हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ, जब तक कि इक्विलिब्रियम की स्थिति नहीं आ जाती है। यानी बोथ द साइड, बोथ द रीजन्स, द कंसंट्रेशन विल बी सेम। ओके, दिस वन इज द इक्विलिब्रियम, यू नो वेरी वेल चिल्ड्रन। So they see here the diffusion across membrane। If we talk about the diffusion across membrane, that is transport, it is of two type, that is passive and active। But I have already told you that diffusion, that is passive transport, and it is of two type, that is simple diffusion and facilitated diffusion। Osmosis तो देख रहे हैं बच्चों आप, osmosis is simple diffusion of water। समझिए, ऑस्मो मीन्स वाटर। ऑस्मोसिस का सिंपल सा डेफिनेशन होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। सो इट इज अ डिफ्यूजन इटसेल्फ, बेसिकली डिफ्यूजन ऑफ वाटर। सो इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, then it is up to type, that is simple diffusion and facilitated diffusion। Okay, then we shall also discuss about the active transport children, in which the movement of substances takes place from the region of lower concentration to the region of higher concentration, and obviously it utilize energy expenditure। यहाँ पर एनर्जी के एक्सपेंडिचर की जरूरत भी होगी, यह एक्टिव होगा and it will be faster। कॉमन सेंस की बात है कि यह एनर्जी एक्सपेंडिचर लेगा और यह फास्टर होगा। जबकि डिफ्यूजन आपने देखा, जहां पर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है बच्चों, यह सिंपली हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ हो रहा होता है। और इसको दो भागों में बांटा गया है, विच आर सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसा कि मैंने बताया, अगर सब्सटेंसेस का मूवमेंट बिना किसी फैसिलिटी को यूटिलाइज किए हो रहा होगा, देन इट इज सेड टू बी एज सिंपल डिफ्यूजन।
and if it is utilizing any kind of facility present inside the membrane, then it is said to be as facilitated diffusion. But please keep this thing in your mind that there is no any kind of energy expenditure in the both kind of diffusion, that is simple or facilitated. Okay children, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं बच्चों। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि सिंपल डिफ्यूजन हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, एनर्जी का एक्सपेंडिचर कहीं पर भी नहीं हुआ। यह अलग की बात है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सब्सटेंसेस विल यूटिलाइज some facility present inside the cell membrane or plasma membrane. Okay, so see here the diffusion, the movement of molecules from an area of higher concentration to an area of lower concentration. मैं पहले ही बता चुका हूँ, it based on the principle of concentration gradient. ये हायर से लोअर की तरफ अपने आप चल रहा होता है, that is said to be as concentration gradient. The difference in the concentration of substances, across space वही डिफरेंस होता है जिसको इक्वलाइज करने की कोशिश हो रही होती है। Substances diffuse down their concentration gradient, movement continues until an equilibrium is reached. I have told you children, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। It is passive process, मैंने बताया यह एक पैसिव प्रोसेस है, does not require energy, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड इट इज स्लोअर। इसको अलग से नोट करिएगा कि इट इज स्लो, इट इज स्लो प्रोसेस। ये स्लो और फास्ट में भी डिफरेंशिएट करने के लिए आता है बच्चों, तो आप जानते रहिएगा कि इट इज स्लो प्रोसेस, यह स्लो प्रोसेस होता है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, इसमें किसी एनर्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। ओके, नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डिफ्यूजन इज ऑफ टू टाइप, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आइए पहले सिंपल डिफ्यूजन देखते हैं बच्चों। आज से हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी शुरू किए हैं। बेसिकली फिजियोलॉजी आप जानते हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म, वाइटल एक्टिविटीज, लाइफ प्रोसेस। 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, पहला ही चैप्टर लाइफ प्रोसेस। सो हियर वी आर जस्ट स्टार्टिंग द लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स, एंड द फर्स्ट चैप्टर वी आर सीइंग द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों। We are just starting transportation and seeing about the first kind of main transportation, that is diffusion, that is based on the principle of concentration gradient children. It is based on the movement of substances from the region of higher concentration to the region of lower concentration without any expenditure of energy. And as I have told you that diffusion is of two types, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दो तरीके के डिफ्यूजन होते हैं बच्चों, इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, जैसा कि आपने देखा, या फैसिलिटी भले ही यूटिलाइज कर ले मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। यह स्लो प्रोसेस है, यह पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड स्लो प्रोसेस। नाउ सी द फर्स्ट काइंड, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन, the process whereby atoms or molecules intermingle in a random pattern due to the motion produced by their thermal energy। जो उनके अंदर हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, उसकी वजह से यह रैंडम पैटर्न में मोशन करते रहते हैं, हायर से लोअर की तरफ चल रहे होते हैं, कोई एनर्जी नहीं ले रहे होते हैं, किसी फैसिलिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं। दैट इज बेसिकली नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। एंड व्हाट अबाउट फैसिलिटेटेड? Many molecules and ions need special protein channels to pass through the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन को पास करने के लिए, मैंने पहले ही बताया बच्चों आपको, सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जाने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को प्रोटीन चैनल्स की जरूरत पड़ती है, which are very well known as porins। नोट करिएगा जरूर बच्चों आप, PORINS। Please note in rough copy that these protein channels are very well known as पोरिन्स, PORINS। और यही पोरिन्स अगर वाटर के लिए यूटिलाइज हो रहे होंगे, दैट विल बी वेरी वेल नोन एज एक्वापोरिन। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेनी मॉलिक्यूल्स एंड आयंस नीड स्पेशल प्रोटीन चैनल्स। बहुत से मॉलिक्यूल्स और आयंस ऐसे होते हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन को पास करने के लिए प्रोटीन चैनल्स की जरूरत पड़ती है बच्चों। ओके, बट
These protein channels are very well known as porins, I have told you. And if these porins are utilized for the transportation of water, then it is said to be as aquaporin. तो पोरिन और एक्वापोरिन ये दोनों एक एक मार्क्स में कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है बच्चों. दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन इट. पोरिन्स एंड एक्वापोरिन्स, which are the porins are the proteinaceous channels in fact. This is still considered diffusion since the molecules or ions move from the high to low concentration. ध्यान से समझिएगा आप, हाई टू लो, हाइट से लो की तरफ का इसका हाई रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लो रीजन ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस मूव करते जाएंगे बच्चों विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर. बट हियर they will utilize some protein channels present inside the cell membrane to across it, and since they are utilizing some facility present inside the cell membrane, that's why this diffusion is well known as facilitated diffusion. तो दो तरह का डिफ्यूजन देखा आपने बच्चों में, ध्यान से समझिए. एक में आपने देखा सिंपल डिफ्यूजन in which there is no any energy expenditure takes place and no any facility is being utilized. Simply the molecules move from the region of higher concentration to the region of lower concentration on the basis of simple principle of concentration gradient. Okay, and that is passive transport. But here, facilitated diffusion is also passive transport, but it utilizes some facility, that is protein channels present inside the cell membrane to across it. And I have told you that the channels are said to be as porins और वाटर के लिए बच्चों एक्वापोरिन्स. तो ये चैनल्स यूटिलाइज कर रहे हैं. इट इज सेड टू बी एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. दो तरीके के डिफ्यूजन देख लिए बच्चों. अब हम लोग दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि डिफ्यूजन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. डिफ्यूजन कैसा ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट. और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की. ध्यान से समझिए, डिफ्यूजन जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट था, स्लो प्रोसेस था, हाई रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लो रीजन ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा होता है एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. नाउ सी द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, just opposite of passive transport, just opposite of diffusion. In fact, in this type of transport, the molecules move against the concentration gradient. अभी तक देखिए, डिफ्यूजन में मैं बार बार बता रहा था कि डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पर होता ही है, यानी हाई टू लो. और जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज व्हाट, दैट इज लो टू हाई. कॉमन सेंस की बात है बच्चों. अब जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगा तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली लो टू हाई. अब लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा बच्चों, एंड ऑब्वियसली एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड. यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. एग्जिबिट सैचुरेशन काइनेटिक्स, एनर्जी के थ्रू सैचुरेशन काइनेटिक्स आएगा. लेकिन सबसे दीगर बात ये कि एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट it is the movement of molecular substances from the region of lower concentration to the region of higher concentration. ध्यान दीजिएगा, low to high, that is against concentration gradient. और जबकि in passive transport, in diffusion, we have seen that the movement of molecules from the higher region of concentration to the lower region of concentration, that is just according to concentration gradient. But here the movement is occurring against the concentration gradient, that is active transport. यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, चूंकि इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है. दैट्स व्हाई इट विल बी फास्टर प्रोसेस. इट विल बी फास्टर प्रोसेस. यह फास्टर प्रोसेस होगा बिकॉज इट यूटिलाइजेस द एनर्जी एक्सपेंडिचर. सो इट इज अगेन द सेकेंड काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जबकि डिफ्यूजन में हम लोगों ने देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट, और अभी उसी के अंदर हम लोग ऑस्मोसिस भी आगे देखेंगे. दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन फैक्ट फ्रॉम हाई टू लो, हाई रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ऑस्मो मींस वाटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इन पैसिव ट्रांसपोर्ट we have seen the movement of molecule occurring from higher region of concentration to lower region of concentration without any expenditure of energy. Okay, following the concentration gradient principle.
And here in active transport and passive transport is slower process, which we have already discussed. And in active transport, we are saying that it involves the movement of molecules from the lower region of concentration to the higher region of concentration. एंड ऑब्वियसली एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड देयर, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वहां पर, तभी यह मूवमेंट हो पाएगा. एंड सिंस एनर्जी एक्सपेंडिचर इज बीइंग रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट विल बी फास्टर प्रोसेस. यह एक तेज गति वाला प्रोसेस होगा बच्चों. भले ही लो से हाई की कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, लेकिन एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा होता है, जिस वजह से यह मूवमेंट बहुत ही तेज होगा बच्चों. सो दिस वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ सी द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स. अगर देखिए ट्रांसपोर्ट भी अगर सेल मेम्ब्रेन से एक तरफ से दूसरे तरफ हो रहा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सो इट इज ऑफ थ्री टाइप्स यू आर सीइंग हियर, दैट इज यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट. नाम से ही पता चल रहा होगा आपको बच्चों, यूनि मीन्स अकेला, यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट वन सॉल्यूट एट ए टाइम. ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट one solute is being transported across the cell membrane at a time. एक समय में केवल एक सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, इसकी डिपेंडेंसी किसी और पे नहीं होती है. दैट इज द सिंगल ट्रांसपोर्ट यूनिपोर्ट. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एज यूनिपोर्ट. नाउ सी द सिम्पोर्ट. Symport transports the solute and contrasported solute at the same time in the same direction. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, contrasported मीन्स होता है कि जब दो सॉल्यूट एक साथ में मिलने पर ही एक सेल मेम्ब्रेन के इस पार से उस पार जा सके. The transport of both substances are being dependent upon each other. जब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हो और दोनों एक रास सेल मेम्ब्रेन एक डायरेक्शन में जा रहे हो, एक साथ में जा रहे हो, दैट इज सेड टू बी एज सिम्पोर्ट. एंड द थर्ड काइंड ऑफ मूवमेंट दैट इज एंटीपोर्ट. नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट द सॉल्यूट इन और आउट एंड द को ट्रांसपोर्टेड, और जो दूसरा वाला सॉल्यूट है इन द अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पर भी दो सॉल्यूट एक साथ में ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे बट नॉट इन द सेम डायरेक्शन. one solute in one direction and other solute in the opposite direction. That's why this kind of transport is said to be as antipode. तो बच्चों आपने तीन तरीके के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट देखा across the membrane, which are unipode, sympode and antipode. Now my dear kids, I am trying to explain these things by ray diagram. This is the ray diagram, unipoder, sympoder and antipoder. Now see here, unipode में मैंने क्या बताया, ये द मूवमेंट ऑफ वन सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एक सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज यूनिपोर्ट. इन सिम्पोर्ट टू सॉल्यूट मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, एक साथ में ए और बी, देख रहे हैं आप ए और बी दो सॉल्यूट है और साइमल्टेनियसली एक साथ में दोनों सेल मेम्ब्रेन से अक्रॉस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, दैट इज वेरी वेल नोन एज सिम्पोर्ट. एंड थर्ड वन इज एंटीपोर्ट. In antipode, you are seeing children that two substances, two molecules A and B are moving across the cell membrane, but in opposite direction simultaneously. एक ही साथ तो मूवमेंट हो रहा है, but in opposite direction. That's why this kind of transport is said to be as antipode. तो पीछे मैंने अभी आपको तीन तरीके का ट्रांसपोर्ट दिखाया बच्चों, यूनिपोड, सिम्पोड and antipode. And here you are seeing the ray diagram of sympode, antipode and unipode, and I think that you now can understand all the things related to transport across the cell membrane. यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में एक चीज और आपने को नोट करने के लिए मैंने बताया है कि इन सेल मेम्ब्रेन द प्रोटीनेशियस channel providing movement to certain molecules and ions are said to be as porins. And if these channels are being utilizing for the transport of water molecule, then it is said to be as एक्वापोरिन. तब उसको एक्वापोरिन कहेंगे. अभी वाटर का बहुत ही ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को देखना है बच्चों यहाँ पर. तो आइए डिफ्यूजन में ही, अब हम लोग डिफ्यूजन में ही देखते हैं ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज नथिंग एल्स, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, हाई टू लो, ये आपको पहले से ही पता है. यानी आप कैसे ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं, osmosis is the movement of substances or molecules from the region of higher concentration
वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जब अभी आप यहाँ पर रूट हेयर्स के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो दैट इज बेसिकली एंडोस्मोसिस और यू कैन से ऑस्मोसिस। तो वाटर जो एब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन प्लांट्स बच्चों, वह ऑस्मोसिस के थ्रू ही एब्जॉर्ब करते हैं। एंड यू नो वेरी वेल दैट रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। रूट हेयर्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं बच्चों, एंड देयर सेल वॉल एक्टिंग एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और उनका जो थिन और ट्रांसपेरेंट रूट हेयर्स का जो सेल वॉल होता है दैट इज थिन एंड ट्रांसपेरेंट, acting as semi-permeable membrane which is required for osmosis, which is necessary for osmosis, because osmosis is the movement of molecular substances across the semi-permeable membrane. Okay, तो हायर रीजन टू लोअर तो है ही, तो इसलिए जो है व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इट इज द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट like water across a semi permeable membrane। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो मूवमेंट होता है वाटर का फ्रॉम अ लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इनटू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल रहा है यहाँ पे, यानी कि हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन। मैं सॉल्यूट के रेफरेंस में बात करूंगा तो हायर रीजन टू लोअर रीजन, तो डोंट बी कंफ्यूज चिल्ड्रन। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को लेके चलेंगे आप। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर। आप नोट बनाते समय यही डिफिनेशन, ये तीनों डिफिनेशन नोट करेंगे और कोई नहीं, इन्हीं तीनों डिफिनेशन को नोट करना है बच्चों आपको ऑस्मोसिस के लिए। ध्यान दीजिएगा, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। Water tends to flow from where its chemical potential is higher to where it is lower to solution with different chemical potential separated by a semi-permeable membrane। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है बच्चों जिसके थ्रू ये सेपरेट होता है। And the movement of water from the region where net hydrostatic pressure is higher to a region where it is low। obvious सी बात है, वहां पर ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा बच्चों। And after osmosis we shall discuss about the another kind of similar transport, similar kind of movement, that is plasmolysis। प्लाज्मोलिसिस के लिए हमें इन तीन तरीके के सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करना होगा, which are hypertonic, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। यू आर सीइंग चिल्ड्रन हियर, टोन वर्ड जो सल्यूट के लिए होता है जानते रहिएगा आप। हाइपरटोनिक जहां पे सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन कम। आइसोटोनिक जहां पे सल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल है, वाटर बोले तो सॉल्वेंट। और हाइपोटोनिक जहां पे सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है जबकि वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, इसको बोलते हैं बच्चों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यू आर सीइंग हियर, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग चिल्ड्रन, hypertonic solution is the solution in which water concentration is low and solute concentration is high is said to be as hypertonic solution। isotonic solution having both the concentration same, and in hypotonic solution the concentration of water is maximum and the solute concentration is very low, that's why it is said to be as hypotonic। hypo means कम and hyper means ज्यादा। अगर ज्यादा सल्यूट है वाटर कम तो हाइपरटोनिक, और अगर सल्यूट कम है वाटर ज्यादा तो हाइपोटोनिक। ओके, जाहिर सी बात है जब किसी हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा बच्चों, या यहाँ पर जैसे देखिए ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा गया है सेल शेप, अगर इस सेल शेप को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाएगा तो इस सेल का शेप पूरा बाहर आ जाएगा, दैट विल बी आल्सो ऑस्मोसिस। और यहाँ पर इसका सेल मेम्ब्रेन जो है वह सेल वॉल या सेल जो देख रहे हैं आप, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा, थिनो ट्रांसपेरेंट है। रेजिन का एग्जांपल ले लें, रेजिन को लेकर ये प्रैक्टिकल भी करना है बच्चों आपको लेबोरेटरी में प्लाज्मोलिसिस का। जब रेजिन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इट विल बी प्लाज्मोलाइज्ड, क्योंकि इसका जो सेल शेप है वह हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ बाहर निकल जाएगा एंड सेल्स विल श्रिंक्स अप, सेल श्रिंक्स कर जाएंगे। such cells are said to be as plasmolized cell and such process is very well known as plasmolysis।
plasmolysis. So please children, first of all see the definition. Plasmolysis is the process in plant cell where the plasma membrane pulls away from the cell wall due to loss of water through osmosis. जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, जब वाटर का लॉस होने लगेगा, सेल सेप का लॉस होने लगेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को पुल करेगा सेल वॉल से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में दूरी आ जाएगी and cell will shrink up, automatically cell will shrink up. So this one is plasmolysis children. And my dear kids, now time is over. In the next class, my dear kids, we shall discuss about detail in plasmolysis, imbibition and various kind of transport in plant, and elaborate the three kind of solution, which are hypertonic solution, isotonic solution and hypotonic solution with reference to plasmolysis. Thank you very much.